Suchita Company Limited issued 20 lakh rupees can new capital divided into 100 equity shares at a premium of 20 per share. इसका मतलब मालूम है क्या हो गया सर? They haven't given you the number of shares. अपने को नंबर ऑफ शेयर्स क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा. हाउ डू यू डू दैट? फर्स्टली तो लिखेंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1. चलो, एक्चुअली ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं, इश्यूड ही दिया है. द शेयर कैपिटल का अमाउंट दे गिवन इज हाउ मच? 20 लाख ना. व्हाट इज द फेस वैल्यू of rupees 100 each, na? So 100 becomes the face value. Therefore, the number of shares that they have issued, is it going to be 20 lakhs divided by 100? कितना आएगा 20 लाख divided by 100? 0 0 0 0 cancels. तो 1 2 3 4 20,000 आ रहे. So they have issued how many shares? 20,000 shares. Doubts? Okay. Now this 100 रुपये का शेयर has been issued at a premium of 20 per share. मतलब 10 रुपये का शेयर है, सॉरी 100 रुपये का शेयर है, मैंने उसको 120 में दिया. ओके. 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 10 रुपी प्रीमियम. मतलब अलॉटमेंट पे टोटल कितना रुपया आने वाला है? 50. कैसे 50 आया? 10 रुपी प्रीमियम का एंड 40 रुपीज अलॉटमेंट का. एंड द फाइनल कॉल वॉज 50 रुपीज एंड 10 रुपी प्रीमियम. तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग? 3. फर्स्ट स्टेज इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल. करेक्ट. एप्लीकेशन पे 10 रुपीज शेयर का, अलॉटमेंट पे उसने मुझे बताया दैट आई एम हैविंग 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 10 रुपीज ऑन ऑफ प्रीमियम. सो 40 रुपीज का शेयर एंड 10 रुपी का प्रीमियम, दैट इज गोइंग टू बी टोटल 50 रुपी. And the last one they're telling me that the final call is made for 50 rupee on the share and 10 rupee premium. हो गया ना 10 10 20 प्रीमियम का पैसा. So here I am calling 50 rupees on this, 10 rupees premium, so total 60 rupees. है ना? Now have a look at this. 10 rupee plus 40 50, 50 plus 50 100 हो गया ना? 100 रुपी. 10 रुपी प्रीमियम, 10 रुपी प्रीमियम हो गया ना 20. एक बार फिर से 10 रुपी 40 एंड 50, 10 10 20. ऐसा ऐसे हम लोग 10 रुपी प्लस 50 60, 60 प्लस 60 120. एंड वही तो तुमको इजी. इंटरेस्टिंग पार्ट अभी चालू होगा सर, बहुत मस्त क्वेश्चन है. क्या बोला उसने मुझे पता है. द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 शेयर. आपने शेयर इश्यू कितना किया था अभी कैलकुलेट किया आपने 20,000, बट यू गॉट एन एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 20. कितना एक्स्ट्रा है? The applicants for 2,000 shares was sent a letter of regret. Regret का मतलब होता है पछतावा, पछतावा मतलब by refund. In a very subtle way, उन्होंने बोल दिया that I am not going to give you the shares. But कितना? 2,000. And their application money was refunded. The remaining applicants were allotted on the pro rata basis. मतलब they were adjusted in the allotment money. Now have a look at this, बच्चे. You see the number of shares applied. Is it 26,000? So here it is going to be how much? 6,000. These are the shares which are extra with me. From that, I am going to refund 2,000. So I am going to adjust, and adjust कैसा है? 6 minus 2, that is going to be 4,000. Any pyrobilum? मतलब अपने को इससे मतलब है and इससे मतलब है. Correct? So when I will be receiving the money ना, जब भी पैसा आप रिसीव करोगे, so you will be receiving
26,000 multiply by 10 rupees because the share का value is 10 rupee. Number of shares into 10 rupee. पक्का? हाँ, 20 is the premium. एप्लीकेशन पे देखो आगे क्या दिया है, पेएबल एज 10 ऑन एप्लीकेशन. 20 रुपीज तो प्रीमियम का अमाउंट है बच्ची. वट एवर आई एम राइटिंग विद द ब्लू पेन, अपने को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. I received the application for 26,000 shares. So I'll be multiplying with 26,000 shares into 10 rupee. How much is that? But you issued only 20,000 shares. You can keep with yourself. तो ट्रांसफर कितना करोगे? 20,000 शेयर्स. अच्छा, आप अपने पास में रख सकते हो सिर्फ 20,000 शेयर्स का 10 रुपया. That is going to be 2 lakh rupees. You got 2 lakh 60, but you can keep with you only. Now you're going to reject and refund and adjust pro rata basis. How much? How many shares are going to are you going to reject? Sorry, reject and refund is one of the same. Reject करके refund करना पड़ेगा. That is 2,000 and adjust करना पड़ेगा 4,000. So here the entry would be, अभी मैंने आपको entry सिखाया था वो. Remaining amounts, the remaining shares का amount adjusted in the allotment. Correct है? Now you had to adjust 60,000 rupees का shares, जिसमें से 20,000 का you refunded. पक्का? 2,000 ना, 2,000 तो एक शेयर का बचे. हाँ सॉरी, 10 रुपया एक शेयर का है, तो 2,000 शेयर का 20,000 हुआ. एंड 4,000 शेयर का. पक्का? ये आपने एडजस्ट किया ना प्रोराटा बेसिस में. मतलब आपने पैसा उठा के शेयर एप्लीकेशन का अलॉटमेंट में लिख दिया. क्यों लिखा आपने अलॉटमेंट के अंदर? बिकॉज आप जब ये अलॉटमेंट का पैसा मांगने जाओगे तो उतना पैसा आप उससे कम मांगोगे, है ना. जितना आपने ट्रांसफर किया, दैट इज 2,60,000. आपके पास कितना एप्लीकेशन से ट्रांसफर करवा लिया आपने? सिर्फ और सिर्फ ने सॉरी 2,60,000 आपने रिसीव किया, आप अपने पास रख सकते हो सिर्फ 2 लाख. तो आपने 60 को एडजस्ट किया, जिसमें से 40,000 रुपया आप क्या करोगे, अलॉटमेंट के नाम पे कम मंगाओगे. बिकॉज एप्लीकेशन में लोग कितने रुपये मंगवा रहे हैं, समझे. मगर अलॉटमेंट स्टेज में सबसे पहले एंट्री क्या आएगा बच्चे? वेरी गुड सर. एंड यहाँ पे प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा. हाँ? आप मुझे बताएंगे सर, हम लोग अलॉटमेंट पे शेयर का 40 रुपये मंगा रहे हैं,
प्रीमियम का 10 रुपये मंगा रहे, तो टोटल कितना मंगा रहे? एंड मेरे पास में शेयर्स रख कितना सकता हूँ मैं? सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर्स। तो मेरा क्वेश्चन 20,000 से ही चलेगा, करेक्ट ना सर? सो हियर इट इज गोइंग टू बी 40 रुपीज इंटू 20,000 एंड 10 रुपीज इंटू 20,000, और यहाँ पे आएगा 50 रुपया इंटू 20,000, 20,000 20 के। चलो, now when you multiply this बच्चे, you got to get the answer as 10 lakh rupees, जिसमें से 8 lakh rupees you are going to get it from equity and 2 lakh rupees you are going to get it from premium. 10 lakh rupees मंगा होगा उसके पास. Any problem? Here the narration will be written. Being application money along with the premium was being called up. सर अंग्रेजी में आपको जैसा लिखना लिख सकते हैं. There is no hurdle. बस the very first word that has to be being. पक्का? Now you are going to receive the amount. रिसीव में बैंक अकाउंट डेबिट आएगा बिकॉज पैसा आने वाला है. अच्छा, आपको कितना पैसा मंगवाना था? 10 लाख. 8 और 2 लाख, सबको मंगवाना था 10 लाख रुपया. बट क्या हो गया ना बच्ची, आपने पहले से ही एडजस्ट कितना करके रखा है? 40,000 हो गया. मतलब आप पूरा 10 लाख नहीं मंगा सकते, आपको मंगवाना पड़ेगा बिकॉज इन द क्वेश्चन दे हैव टोल्ड मी ना कि इस अलॉटमेंट के अंदर मेरे पास में 40 रुपया है और प्रीमियम का 10 रुपया, तो टोटल मैं 50 रुपया मंगवा रहा हूँ. देखो ये क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ, समझा? एंड द लास्ट वन, फाइनल कॉल फॉर 50 एंड 10 रुपये प्रीमियम. सर ये तो बहुत ईजी हो गया, सेम टू सेम एंट्रीज पास करनी है मतलब अपने को. फर्स्ट पहले ट्रांसफर एंट्री आएगा, तो बहुत गुस्सा दे देते हैं स्टेज ना. चलिए पहला एंट्री कौन सा आएगा? ट्रांसफर का, दैट इज शेयर. इस वाले क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम दो बार दिया है, 10 रुपया एंड 10 रुपया. नहीं समझा? हाँ ये तो रहा. सी तेरा प्रीमियम टोटल 20 रुपीज है, जिसमें से उसने बोला है अलॉटमेंट पे 40 रुपीज एंड 10 रुपी प्रीमियम एंड 50 रुपीज ऑन फाइनल कॉल एंड 10 रुपी प्रीमियम. तो हुआ ना तब 10 जाके 20. तो यू हैड टू कलेक्ट 20 रुपीज बट यू डिड नॉट कलेक्ट 20 रुपीज एट वन शॉट. आपने 20 रुपीज को कलेक्ट किया 10 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 ऑन फाइनल कॉल. आधा आधा मंगाया. 20 रुपया है ना यहाँ पे देखना, 100 रुपी एट अ प्रीमियम 20 रुपी पर शेयर. तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया? 20. 10 ऑन एप्लीकेशन, ये इजी. 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 प्रीमियम, मतलब के 10 रुपये प्रीमियम का आ गया. कितने में से? 20 में से. 10 रुपये प्रीमियम का आ चुका है अलॉटमेंट का, तो और 10 रुपये आएगा ना. तो वो कभी मंगवाया है अपन ने? फाइनल कॉल में. बच्चे 20,000 मल्टीप्लाई बाई 50, 12 लाख आना चाहिए था. 10 लाख तो शेयर्स का ही है. या पैसा मंगाएंगे ना, आपने ट्रांसफर कर दिया. अभी ट्रांसफर कर कौन सा एंट्री पास करते हो आप सर? रिसीट. चलो मुझे बताएंगे रिसीट एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट. So that's your solution. Question number 5, page number 342, working note solution and done. डिफिकल्टी थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना अपने को.